survive. These are people who are living in poverty, sir. Please have a heart for them. And please, you have not answered my first question. If you cannot create a fisheries ministry, how about at least a fisheries commission? Somebody must be dedicated to understanding and dealing with the problems of our fisher people. Your government, sir, is not. Thank you, Mr. Speaker. Sir, Government of India is making no discrimination between foreign and Indian vessels. Sir, foreign vessels are completely prohibited now, and Government of India, before making a legislation, it will consider all the members, all the states have been considered, all the stakeholders have been considered, and I think under the able leadership, so able a champion like Narendra Modi, our Honorable Prime Minister, nobody will be discriminated, and especially the fishermen is our prime concern, and the new Ministry of Fisheries and Animal Husbandry has been created by this present government under the leadership of Narendra Modi ji to focus on the training, the income generating policy and everything else for the welfare of the poor fishermen. They are well protected. Foreign vehicles, foreign vessels are prevented to protect our own fishermen, to protect our fish resources, and various trainings are being imparted. Parliamentary forum for coastal MPs, so we can let this government know about the problems of our fisher people. Sir, please, it's in your hands, sir. Sarkar nahi karegi to aap kijiye, Speaker Sahab. If a vessel is found guilty, nobody can protect the vehicle, be it foreign or Indian. No foreign vessel is being discriminated. They are fined. There is a provision of fining them up to rupees 10 lakh in the exclusive economic zone if the vessel is found guilty. But only penalty can be imposed only after it is proved, only after it is established after investigation. Before proving something, we cannot impose penalty. A license fee to Indian fishermen, your Sir, due to the global warming and global climatic changes, the marine wealth has been decreasing every day. The presence of many fishes like the sardine fish has been vanishing in our oceans. And this is a major source for the indigenous traditional fishing community. Sir, there have been many proposals given by the Kerala government. Kerala government has done in the past also a lot of conservation activities, like Dr. Shashi Tharoor have really mentioned here. The traditional fishermen face a huge challenge from the fish trawlers, from the foreign fish trawlers, not only foreign, but certain corporate companies who come to the deep sea and who just steal all the wealth of the traditional fishermen. Sir, there is a proposal given by the Kerala state government in consultation with the CMFRI for the indigenous fish workers to tape the fish like tuna, sailfish, etc. Sir, 74 crore rupees proposal was given to the central government with making ice from seawater and having deep sea refrigerators as well. Sir, is the government seriously considering the state government of Kerala's proposal for the traditional fishermen, and is the central government taking any major measures like the honorable member have mentioned for controlling the foreign trawlers? Sir, I have already mentioned that the present trespassing vehicles are governed by a rule named MJE Act, meant for the regulating foreign vessels fishing activities. Sir, according to this act, 15 lakh rupees can be imposed as fine in the territorial water and 10 lakh in the exclusive economic zone. हो गया, आपने रिपीटेशन मत करो, बता दें. TN प्रतापन जी. No. Honorable Speaker, sir. Traditional fishermen are facing many crucial problems. Repeat मत करें क्वेश्चन को. No, yeah. Short में पूछें. Traditional fishermen are facing many crucial problems, including lack of fish wealth in the sea, and foreign trawlers are fishing wildly in the deep sea. It affects our fishermen community very much. Honorable Minister,
whether the central government initiate a fisherman welfare special package, whether the government Okay. will facilitate a meeting of all fishermen organizations and coastal area MPs to discuss about the हाँ ठीक है, आपका सुझाव माननीय सर, मंत्री जी, इंडियन कोस्ट गार्ड- माननीय मंत्री जी, आप तटीय क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं उनकी बुलाकर एक बैठक कर लेना, चर्चा हाँ, कर सर। लेना। That's all? सर। Right. Next question 1 2 3 सुरदुला चंद गोस्वामी जी। पूछता हूँ, माननीय मंत्री जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में जो मछली का उत्पादन है और उसके अनुरूप खर्च, जो मछली का खर्च हो रहा है, क्या देश में विदेशों से भी मछली मंगाना पड़ता है? इसके साथ साथ दूसरा चीज़ कि बिहार इतना प्रयास करने के बाद भी मछली के उत्पादन में बहुत पीछे है और बिहार को 50 से 60 हजार टन मछली अन्य राज्यों से या विदेशों से मंगाना पड़ता है, तो मछली, तो इसके लिए क्या माननीय मंत्री जी बिहार के लिए कोई विशेष पहल करने का विचार रखते हैं? सर, विश्व में हम मछली उत्पादन में तृतीय स्थान पर हैं। सर, हम ज़्यादा मछली भी एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ मछली बाहर से आता है। सर, इसमें बिहार के लिए बिहार सरकार का जो प्रपोजल था 320 करोड़ 45 लाख का, इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है और ये एक नीड बेस्ड प्रोग्राम है। बिहार सरकार का जितना प्रस्ताव आएगा, जितना डिमांड आएगा, उतना ही मंजूरी मिलेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूँ, वो सरकार के द्वारा नया प्रस्ताव भेजने के लिए तो ये अप्रूव्ड राशि से बाकी राशि रिलीज हो सकेगा। और बिहार में ये कोल्ड चेन के लिए, मछली का प्रोटेक्शन के लिए, फार्मर्स का बेनिफिट के लिए कई प्रोजेक्ट को हमने अप्रूव किया है। सर, अभी वो कोल्ड स्टोरेज के लिए और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स और आइस बॉक्स के साथ साइकिल, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, ये सब के लिए ही हमने मंजूरी दे दिया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, बिहार को अगर आगे लेने के लिए जितना डिमांड पेश किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, कुछ पैसा के अभाव नहीं, ये सरकार इसको मंजूरी दे देगी और बिहार को जितना सपोर्ट किया जा सकता है वो कर किया जाएगा। क्यों अब क्या? मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न और करना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार तालाब, पोखर और बिहार में प्रचुर मात्रा में पानी है, लेकिन जो बिहार में एक बड़ी समस्या आ रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में ही पोखरों में, तालाबों में, पॉन्ड्सों में जीरा छोड़ा जाता है, मछली का बच्चा, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही फ्लड आता है और किसानों को इससे भारी क्षति होती है। फ्लड में पहाड़ से गंदा पानी आता है, फ्लड जाने के बाद मछली में रोग भी बहुत अधिक लगता है। तो मैं भारत सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि इस दिशा में क्या कोई विशेषज्ञों का टीम को भेज करके कि अतिवृष्टि और फ्लड में के समय भी किसानों का मछली सुरक्षित रहे, और दूसरा चीज़ कि मछली रोग मुक्त हो। और मैं एक चीज़ माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, भारत सरकार का प्रयास अच्छा है, बिहार एक गरीब राज्य है अध्यक्ष महोदय, ये मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि मछली पालकों को तो प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन मछली रोजगार में लगे मजदूर जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे और उसको व्यापक रोजगार नहीं मिलेगा, तो बिहार ना अपना घरेलू जो उपयोग का मछली है उसका कर सकेगा, ना बिहार मछली उत्पादन में आगे बढ़ सकेगा। तो इस दिशा में भारत सरकार क्या कर रही है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, लगभग 85,274 मछली पालकों और मजदूरों को हमने प्रशिक्षण दिया है। उनका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए, उनका
इनका रोजगार बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं इस दिशा में एक जागरण पैदा करने के लिए वो अपना क्षमता को भी व्यवहार करें और जिससे ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर किया जा सकेगा और इसके लिए भी फंड्स का प्रावधान है। और जो जहाँ तक ये फ्लड की सवाल है सर, फ्लड में जो मछलियाँ चला जाता है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रतिकारात्मक व्यवस्था करना मुश्किल है अभी, लेकिन वो मछुआरों को इंश्योरेंस के कवर में लिया गया है। अभी जितनी मछुआर इंश्योरेंस के हैं उनको इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, पहले ये नहीं था, लेकिन ये सरकार ने मछुआरों के लिए इंश्योरेंस का स्वतंत्र प्रावधान किया है और व्यापक अवेयरनेस करके सारे मछुआरों को इंश्योरेंस करवाना ये भी हमारे लिए एक जिम्मेदारी बनता है। क्वेश्चन नंबर 129 पिनाकी मिश्रा जी का क्लब किया जाता है। श्री पिनाकी मिश्रा जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सर उत्तर सभापति पर रखा जाए। बेनी बहनन, 123. Sir, the per capita consumption of the fish in India, Kerala is the topest. Sir, Kerala is earning almost 5,000 crores per year from export marine products. Whether the government has any plan to provide exclusive rights over the fishing and fish equipment to the coastal sea for the traditional fishermen, and whether the government had any plan to implement an aquarium reform for this regards. Sir, Government of India has been taking many revolutionary steps to increase the income of the fish farmers, to increase marketing facility and export facilities also. Sir, it will be revealed from the figures that our Sir, this year, according to Matsya Sampada Yojana, sir, more than 20,500 crore has been estimated, out of which the central share will be 9,474 crores. Sir, this is a flagship program of the Government of India, and Government of India, in collaboration with other states, is trying to increase the income of our fish farmers. It has enough potential, and Kerala is having no doubt enough potential for the improvement of fishery sector, and this is a beautiful sector of to supplement our nutrition deficiency and food deficiency. This is the FM Gold channel of So all. every plan is being made and it will be discussed before enactment of the law. It will be discussed with all the members, and almost all the states have been considered. So regarding this export policy, all the members will be consulted before permission of the policy and the enactment of the law. Diesel fishermen. Whether we can even समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम। और the माननीय मंत्री जी, ऐसे बीच में माननीय सदस्य उठे तो आप उसका जवाब मत दीजिए। श्री लाओ श्री कृष्णा। Sir, of all the exports that happen from India in the shrimp farming, 40% happens from my state Andhra Pradesh. Lakhs of farmers are depending on this shrimp farming, and their prices are very much depending on the middleman who buys and sells it, and it's always on their whims and fancies. So through you, Speaker sir, I want to request the Honorable Minister, is there any proposal like how Cotton Corporation of India is doing to stabilize the prices of the shrimp, to establish any board for the shrimp farming also, so that these farmers are not depending on the middlemen? Sir, Government of India in the Department of Fishery, Animal Husbandry and Dairying have been seriously contemplating over forming a platform so that the fish farmers can export their fishes to foreign countries without any middleman,
without an exploitation by middlemen. So Government of India is seriously contemplating over this, and before the enactment of law and other provisions, all the members will be taken into confidence and will be duly considered. श्रीमती मेनका गांधी. Sir, last year, it was shown by a series of raids made by the government across India that all the fish that are being transported within India and perhaps outside are full of a chemical called formalin, which is a chemical used to preserve dead bodies and which is carcinogenic by nature. What has been done, especially the two states that were found to do the most stuffing of fish by formalin, is Andhra Pradesh and Kerala. Tamil Nadu comes second. Every state discovered, from Punjab to to Assam, discovered that they were, and especially Delhi, discovered that they were getting fish with formalin in it. What has been done by the government to stop this practice? If we are to increase and ask people to eat more fish, what is being done instead of using formalin to keep the fish in good transport when they come from one state to another? One. Secondly, sir, a shrimp is grown in India using a huge amount of antibiotics, which is very, very dangerous to human health. What has been done to stop this practice? Sir, I have respect for the deep concern expressed by the honorable member, who has been continuously working on that line. Government of India has been issuing advisory time to time to various fish farmers, fish exporters and other companies to stop all chemicals and find out better alternatives so that no health hazard occurs. Question number 124, Shri Vinayak Bhav Raut. प्रश्न क्रमांक 124. उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया. अध्यक्ष महोदय, बच्चों की तस्करी ये बहुत बड़ी चिंता इस देश में निर्माण हो चुकी है और इससे रोकने के लिए कई कानून बनाए गए. हालांकि पिछले सत्र में इलीगल ट्रैफिकिंग का भी बिल पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एनसीआरबी के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उससे बच्चों की तस्करी में हर साल बढ़ते यानी संख्या बढ़ती जा रही है. क्या मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, ये बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए हर राज्य में वैसी एक स्पेशल स्क्वाड या कुछ यूनिट स्थापन करने की आपके प्रावधान है और आपने क्या उसके बारे में सोचे हैं? अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जो लगातार 2016, 2017, 2018 इस 3 सालों में अगर कंपेयर किए तो वुमेन ट्रैफिकिंग का संख्या बहुत कम हुआ है. और दूसरा सवाल है, वो नंबर भी बता सकता हूँ मैं. 2016 में देश में नंबर ऑफ केसेस 8,132 था. 2017 में घटकर 2,854 हुआ है. अभी 2018 में 2,465. ऐसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केसेस है वो केसेस कम हो रहे. दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, खुशी होगी, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग बहुत जिलों में ये वुमेन ट्रैफिकिंग के यूनिट्स सरकार ओपन किया है. अभी वुमेन ट्रैफिकिंग लेजिस्लेशन स्ट्रांग करने के लिए लास्ट टाइम जो बिल पास किया है, लोकसभा पास किया है, मगर राज्यसभा में पास ना हो के कारण लैप्स हो गया क्योंकि डिसोल्यूशन हुआ था. अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इसी संसद में बिल आएंगे, नेक्स्ट संसद में चर्चा हो रही, वो जल्दी आएगा. उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, अभी आपको खुशी होगा, माननीय सदस्य ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में इस साल में
पैसे मार्च अंत तक हम रिलीज करने वाले हैं, लगभग 100 करोड़। हर जिला में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स का खोलने का प्रावधान किया है, उसमें निर्भया फंड के द्वारा यह प्रावधान किया है। मैं सभी संसद महानुभावों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपना अपने जिला में ठीक तरीके से ये एंटी वुमेन ट्रैफिकिंग यूनिट्स काम करे, जो जितना ज़्यादा हो सकते उतना कम करने के लिए वुमेन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है अपने देश के सामने। ये वुमेन ट्रैफिकिंग इज रेगुलेटेड बाय द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, दूसरा बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट एंड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इस 3 एक्ट के द्वारा इसको रेगुलेट करने का प्रावधान है। इसलिए मैं आने वाले दिन में सभी एरियाज में सभी जिला केंद्रों में ये यूनिट्स खोलने का प्रावधान केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे, क्योंकि लैंड ऑर्डर ये सब इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग यूनिट्स नया स्टेट गवर्नमेंट्स को देने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी ने अभी उत्तर तो दे चुका है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से आकलन करना चाहता हूं। जैसे कि अभी हालांकि वर्तमान पत्र से जो प्रसिद्ध हो चुका है या कई जानकारी प्राप्त हो रही है कि अपने देश में 10 में से 8 गुने ये इलीगल ट्रैफिकिंग के हो रहे, बच्चों की तस्करी के हो रहे, और उसमें ज़्यादा तौर पर उनके ऊपर पाबंदी लाने की या वो रोकने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूँ, निर्भया फंड का आपने प्रोविज़न किया, लेकिन कई राज्यों में निर्भया फंड को यूटिलाइजेशन करने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आना चाहिए या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो हो नहीं रहे। निर्भया फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरी तरीके से बच्चों की तस्करी रोकने के लिए और भी आप कुछ कदम उठाने वाले हैं क्या? अध्यक्ष जी, अलग अलग कार्यक्रम ये वुमेन ट्रैफिकिंग के बारे में भारत सरकार कदम उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी महाराष्ट्र में भी 2016 में 9034 इंसिडेंट देश भर में हुआ, तो सिर्फ महाराष्ट्र में 172 लोगों का मानव तस्करी का केस रजिस्टर हुआ है। ऐसे अच्छे देश भर में ये हर प्रांतों में भी संख्या कम हो गया, ये अच्छी बात है। मगर एक मैं उदाहरण देता हूँ, 2016 में 832 केसेस रजिस्ट्रेशन हो गए, तो वेस्ट बंगाल में कंट्रीब्यूट किया है 2016 में लगभग देश भर में जितने मैक्सिमम केसेस वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसमें देश भर में 8132 केसेस हो गए, तो वेस्ट बंगाल में 3579 हुआ है। उसके साथ ऑलमोस्ट 44% हुआ, 44%। दूसरा 2016 का ही बात कर रहा हूँ, राजस्थान में 1422 केसेस हुए गए, तो राजस्थान में 17% हुआ है। ऐसे मेरा पास पूरा आंकड़ा है, मैं अध्यक्ष जी अगर दिए तो उसके ऊपर पूरा जवाब आपको भेज सकता हूँ। आप हो गया, आपके साथ भेज सकता हूँ। धन्यवाद। हनुमान, हाँ आपको भी देंगे स्वागत दास। पहले हनुमान बेनीवाल जी का लिस्टेड नाम है, हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मंत्री जी ने ज़्यादातर जो हमारे पहले विनायक भाऊ रावत साहब ने ज़्यादातर मामलों के बारे में मंत्री जी से जवाब ले लिया, बहुत चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय। और विशेष रूप से आज लास्ट दिन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी अध्यक्ष महोदय, और यहाँ से बड़े सपने दिखा के बच्चों को, महिलाओं को और बाहर ले जाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी राजस्थान का परसेंटेज इन्होंने 70 बताया, पश्चिम बंगाल के बाद से ही राजस्थान के अंदर भी लगातार कांग्रेस की सरकारें रही, वहाँ की सरकारों का भी कहीं न कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण होता है जो बाहर भेजने का काम करते हैं, ऐसे गिरोह बनते हैं। मैं 2 ही मेरे सवाल पूछना चाहूँगा। एक अध्यक्ष महोदय निवेदन था, मेरे बाड़मेर का एक मामला था जिसमें उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया, 30 वर्ष से बेचारा बैठा ले गए। ऐसे माननीय सदस्य, एक घटना पर आधारित लोकसभा में प्रश्न नहीं होता है, आप पॉलिसी मैटर पर प्रश्न पूछें। थोड़ा माहौल भी तो बनाना है साहब। नहीं, नो माहौल बना।
अच्छा मैं अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार भारतीय दंड संहिता की धारा 370 बदलने का विचार कर रही है? नंबर 1 मंत्री जी। और दूसरा भी पूछ लूं, भारत द्वारा 2019 में विभिन्न देशों जैसे सऊदी अरब के साथ मानक तस्करी तथा नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए MOU करने पर विचार किया गया था। इस संबंध में क्या प्रगति हुई, इसका विवरण प्रदान करें। क्या ऐसा कोई MOU अन्य देशों के साथ भी भारत करना चाहता है जो खाड़ी के देश है? इसके बारे में मंत्री जी आप बता दें सर। के द्वारा द प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स in the Ministry of External Affairs protects the interest of the Indian workers proceeding the abroad for employment purpose. They have developed the e-migrate and Madad, ये पोर्टल्स पर्पस के इसी पर्पस के किए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए हैं। और इमिग्रेशन क्लियरेंस इज ए सेफ्टी मेजर्स विच इंश्योर्स, क्योंकि भारत से बहुत महिलाओं को, अलग अलग व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, अलग अलग काम के लिए दुनिया भर ले जाते हैं। इसी दृष्टिकोण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो वीज़ा देते हैं उसके ठीक तरीके से को देखने के लिए एक काम किया है। जिस जगह विदेश में जाते हैं उस कंपनी की क्या स्थिति है, वो कंपनी अच्छे काम कर रहे नहीं, बोकस कंपनी के नाम पर, बोकस वीज़ा के नाम पर, बोकस लेटर्स के द्वारा ले जाते हैं। इसको रोकने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स में भी इसमें काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी कुछ पूछ रहे हैं। इंडिया हैज साइंड bilateral memorandum of understanding for preventive human trafficking with the government of Bangladesh 6 June. A joint task force of officials of India Bangladesh has been constituted. 6 meetings of the task force have been held so far, last meeting in the month of March 2019. A memorandum of understanding has also been signed by UAE, Cooperation of Preventive and Combating Human Trafficking 2017. A joint task force meeting between India and UAE was held Abu Dhabi last year August. वैसा ही कंबोडिया के साथ भी ऐसी मीटिंग हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ हुआ। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ ये सार्क कन्वेंशन भी जो साइन किया है उसके साथ भी जितने भी कंट्रीज है वुमेन ट्रैफिकिंग कंप्लीट रोकने के लिए, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं जो आज अलग अलग देशों में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2011 and its protocols, namely protocol prevent suppress finishing trafficking persons especially women and children, ये अलग अलग देशों से प्रयास कर रहे यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके भी भारत इसी विषय पर काम कर रहे हैं। शॉर्ट में स्वागत राय जी। सर ये बड़ा दुखद बात है कि हमारे मंत्री जो जवाब देते हैं वो सवाल ठीक से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए गलत जवाब होता है। देखिए सवाल है whether the incidents आप तो of सवाल illegal- पूछो। सर ये काम हमारा है देखने का। नहीं आप सवाल अभी जरा देखिए इसको, हम देख लेंगे। whether the incidents of illegal trafficking of children have increased manifold in the country. जवाब क्या है? The NCRB collects data on human trafficking from states and union territories. Question is on child trafficking. The reply is on human trafficking. Human trafficking includes child trafficking. No, human trafficking is a holistic thing. It includes child trafficking, adult trafficking, and particularly women trafficking. So मंत्री जब जवाब ठीक से नहीं देते हैं, उनका सवाल उनका बाकी जवाब ठीक वो बोल दिया कि वेस्ट बंगाल में ज्यादा है। अगर उसका जवाब गलत हुआ
उनका जवाब गलत हुआ तो उनका हाल वही होगा जो दिल्ली में हो रहे हैं। ये तो होना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ सर मैं अंत करता हूँ। 2 साल पहले मंत्री जी को जानकारी है कि नहीं, जलपाईगुड़ी से वेस्ट बंगाल का एक बीजेपी का महिला नेत्री पकड़े गए थे। अच्छा छोड़िए। अच्छा दूसरा दूसरा सवाल माननीय सदस्य अच्छा छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया सर। मैंने चुप करो তোমাদের একটা মহিলা এরকম করছিল सर मेरा सवाल स्पेसिफिक सर मेरा सवाल सर नंबर मुझे सवाल नो माननीय मंत्री जी अध्यक्ष जी दादाजी सुने अध्यक्ष जी क्वेश्चन में सी में whether the government has any proposal for setting up a human trafficking units. दादाजी सुनिए, whether the government has any proposal for setting up a anti-human trafficking units in all districts of the country, including districts of Maharashtra and Rajasthan. ये प्रश्न संसद ने पूछा है। इसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यूनिट्स हर देश में हर जिला में खोलने वाले हैं। ये मार्च के अंदर पूरे देश भर में हर जिला को पैसे देने वाले केंद्र सरकार की तरफ से, ये हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 श्री कपिल पाटिल। माननीय सदस्य ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय, पंचायत निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत गांवों का देश है। नो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत का विकास उत्तरोत्तर हो, इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट में 1,13 करोड़ का ग्राम विकास मंत्रालय के लिए आवंटन किया है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो आवंटन गांवों के विकास के लिए होता है, तो राज्य को जो निधि जाता है उसका मॉनिटरिंग करने के लिए आरजीएस के लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग प्रणाली बनाई गई है। MIS विकसित और संचालित की गई है। इसके अलावा RGSA के तहत निधियों को जारी करने के लिए, पता लगाने के लिए अंतरण आधारित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। इतनी सारी प्रणाली शुरू की गई है जो राज्यों को निधि जाता है उसका मॉनिटरिंग करती है। एक मिनट, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, ये प्रणाली के माध्यम से जो राज्यों को निधि जाता है, जो निधि राज्यों को जाता है, जिस काम के लिए दिया जाता है उसी काम के लिए राज्यों ने वो निधि खर्च किए हैं कि नहीं किए हैं, इसके माध्यम से आपको जानकारी मिली है क्या? मैं सदन को मंत्री महोदय से ये जानकारी मांगना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ये जानकारी दे, अगर ऐसा हुआ है तो कितने राज्यों में हुआ है और कौन से राज्यों में हुआ है, इसकी जानकारी दें। एक मिनट माननीय सदस्यगण, अगर आप सबकी सहमति हो तो नए सत्र के अंदर हम ये व्यवस्था करें कि माननीय सदस्य भी बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे और माननीय मंत्री जी भी शॉर्ट में आंसर दें, ताकि हम अधिकतर प्रश्न ले सकें। और दूसरा विषय, कोई माननीय सदस्य प्रश्न के अंदर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए और माननीय मंत्री जी भी प्रश्न के इधर उधर जवाब नहीं दें। मतलब दोनों तरफ रखना है आपको।
माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पंचायत को दी जाने वाली राशि की चिंता की है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि पंचायत को आरजीएस के तहत राशि जाती है और फाइनेंस कमीशन की राशि जाती है। पिछले दिनों जब 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई तो 5 वर्ष के लिए राशि 2,292 करोड़ थी और आरजीएस स्कीम जब बनी तो इसके लिए राशि का प्रावधान 2022 तक के लिए 7,255 करोड़ रुपया था। ये दोनों प्रकार की राशियां जाती हैं। ये किन किन मदों में खर्च होंगी इसके लिए निश्चित सशक्त न्याय अधिकरण निश्चित हैं जो मापदंडों के अनुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं और साथ ही इनकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन भी की जाती है और अधिकारी भी प्रवास करके करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी की जाती है। जब राशि खर्च हो जाती है और उसका यूसी आ जाता है तभी उसकी दूसरी किस्त दी जाती है। यूसी जब तक नहीं आता तब तक उसकी दूसरी किस्त नहीं दी जाती। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरे उत्तर में जो आरजीएसए के माध्यम से जो निधि राज्यों को दिया गया है उसमें 17-18 में बिहार को 0 था, अभी 4.25 है। हिमाचल प्रदेश को 0 अभी 17.26 है। गुजरात को 0 है। महाराष्ट्र को 44.53 जहाँ से मैं आता हूँ अभी इस वक्त 11.54 करोड़ रुपया है। ये जो निधि का आवंटन कम हुआ है इसके क्या कारण है? राज्यों ने निधि खर्च नहीं किए इसलिए निधि का आवंटन कम हुआ या केंद्र के माध्यम से निधि कम की गई है? इसकी जानकारी मुझे आपके माध्यम से पूछनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंडमान, बिहार, दादर नगर हवेली, दमनदीप यहाँ से यूसी नहीं आया इसलिए राशि जारी नहीं हुई। गोवा, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना यहाँ पर पिछले वर्ष का जो किस्त जानी थी उससे अधिक पैसा बचा हुआ था इसलिए। प्रश्न संख्या 101 दिलीप शैकिया जी। क्वेश्चन नंबर 101 उत्तर सदन के पटल पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है, बच्चों पर बढ़ता पढ़ाई का दबाव अभिभावकों की अपेक्षाओं की ध्यान में रखते हुए छात्रों की ड्रॉपआउट की समस्या को कम करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? क्योंकि आज देश भर में ऐसे कई विद्यालय हैं जहां पर केवल एक ही शिक्षक मौजूद है। पूरे देश भर में आपका सर्व शिक्षा कोई गलत वक्तव्य मत दीजिए। नो, ऐसे नहीं है, गलत बात नहीं। नो। ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत श्रीमान, पहले जो सर्व शिक्षा अभियान था और माध्यमिक शिक्षा अभियान था और टीचर्स था, इन तीनों को मिलाकर के समीक्षा के बाद समग्र शिक्षा अभियान किया गया, जिसके तहत श्रीमान स्कूलों का उन्नयन है, रियासी विद्यालयों की स्थापना है, परिवहन की सुविधाएं दिलाना है, मुफ्त वर्दी है, मुफ्त पुस्तकें हैं, सामुदायिक प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण से संबंधित है, पुस्तकालय का है श्रीमान, समग्र विद्यालय अनुदान का है, प्री नर्सरी को सहायता देने का है श्रीमान, लड़कियों को आत्मरक्षा के आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है, समावेशी शिक्षा का है, खेल और शारीरिक की दिशा में हर क्षेत्र में राज्य सरकारों को मदद है। जहां तक स्कूल में शिक्षकों के भर्ती का प्रश्न है श्रीमान, क्योंकि ये राज्य सरकारों से संबंधित है, तो उनको बार बार कहा गया कि जो भी पद उनके रिक्त हैं उनको शीर्ष प्राथमिकता भरा जाए। माननीय सदस्य मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट। हाँ एक सेकंड। हाँ एक सेकंड ना।
मान्य सदस्य नो नो मान्य सदस्य आप बोलना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। आप प्रश्नकाल को आप चलने दीजिए, शून्यकाल पर आपका विषय देंगे, सरकार की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जवाब देंगे। चाहते हैं सर। नो, प्रश्नकाल में नहीं, गलत परंपरा, नो, कभी नहीं हुई चर्चा। मैं आपको मौका दूंगा शून्यकाल के समय में। नो, गलत गलत नो। सेकंड सप्लीमेंट्री। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान की ओर अभी सर्वस्पर्शी बनाने की दिशा में कंप्यूटर शिक्षा को छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक का प्रावधान रखा गया है। क्या टीचर और टेक्नोलॉजी का एकीकरण कर सभी स्तर पर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर शुरू करने का सरकार का विचार है? और असम में हजारों टीचर है जिनका अभी तक सर्विस रेगुलराइज नहीं हुआ है, उनको भी कुछ रेगुलराइज करने का, या उनका सर्विस जब तक उनका रेगुलराइज नहीं होगा तब तक उनका सर्विस खत्म नहीं किया जाए, ऐसा कोई प्रावधान रखा है क्या मंत्री जी ने? श्रीमान, पहले कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम था जिसको प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपए उपलब्ध कराया जाता था। इस समय श्रीमान उसको और व्यापक बनाने के लिए और हर बच्चा कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ सके, ई लर्निंग के तहत अब श्रीमान प्रत्येक स्कूल को 6,40,000 रुपया कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए स्वीकृत किया जा रहा है, जबकि 2,40,000 रुपये 5 वर्ष तक के लिए रेगुलर स्वीकृत हो रहा है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत भी अभी तक हजारों स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की जा रहे हैं, जबकि स्वयं प्रभा रक्षा मंत्री आप बोलना के चाहते हैं? तहत श्रीमान इसको किया जा रहा है। रक्षा मंत्री जी बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन प्रमोशन के मुद्दे पर एक जजमेंट दिया है। मामला बहुत ही संवेदनशील है और मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारे सामाजिक न्याय मंत्री यहां पर आकर स्टेटमेंट देने वाले हैं, तब तक सदन की कार्रवाई को ठीक तरीके से चलने दें और जब सामाजिक न्याय मंत्री आएंगे यहां पर स्टेटमेंट देंगे। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी